Yesterday we have discussed many type of topics of electric charge and field. So today we will discuss some new topic. Today we will discuss about some fundamental property of electric charge. So let's start our class. Fundamental property of electric charge. We know that charge are of two kinds. Yesterday we have discussed first is positive charge and second is negative charge. Both kind of charge have the tendency to cancel each other. Sorry, दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, वो कैंसिल कर सकते हैं. सम अदर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिस्क्राइब हियर. इसके अलावा भी कुछ अदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसकी चार्ज की, उसके बारे में अपन क्या करें, डिस्कस कर रहे हैं. मेनली फर्स्ट adductivity of the electric charge. Sorry. Next, conservation of electric charge. Number 3, quantization of electric charge. Invariance of the electric charge. So what is means of different type of properties. First we will discuss about adductivity of the electric charge. Additivity. The total charge in the system is equal to the algebraic sum of all the charge existing in it. If the sum of charge on the substance is 0, then that the substance will be neutral. So he is saying, it is saying electric charge is a, we also know electric charge is a scalar quantity. Scalar quantity. It is, so scalar quantity means it does not depend on direction. So we can say that we can add like positive minus q plus 2q minus 3q, yes or not, in simple form. If the total charge of positive charge equal है total charge of negative, so they cancel each other. वे दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, और उसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल चार्ज. यस और नोट. एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन इसको समझते हैं. इफ प्लस 2q minus 3q and plus 6q charges in a system, then what will be the total charge of the system. ये एक सिस्टम अपन ने लिया है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के चार्जेस सिचुएटेड है, प्लस 2q minus 3q and plus 6q. So total charge existing in the system, so we can add all type of charge plus 2q minus 3q and plus 6q. So if we will calculate, so we will find plus 5q charge. So we can say that in a particular system plus 5q charge on situated on it. Yes or no? Number second property, conservation of electric charge. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब चार्ज को न तो अपन क्रिएट कर सकते हैं और न ही उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं. चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस. यानी चार्ज सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो सकता है, न तो चार्ज को अपन क्रिएट कर सकते हैं, न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अगर किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज, और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. यस और नो. इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस. प्रोटॉन क्या नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता. सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, एग्जिस्टिंग होती है. इसका कुछ एग्जांपल जैसे पेयर प्रोडक्शन. ये एक गामा है जिसके ऊपर दो चार्ज पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे. इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. पेयर एनिहिलेशन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर गामा. एक और अदर एग्जांपल्स वी विल टेक हियर. ग्लास रोड एंड प्लास्टिक रोड. प्रेजेंट में ग्लास रोड के ऊपर भी चार्ज जीरो, मतलब विदाउट चार्ज, एंड प्लास्टिक रोड के ऊपर भी जीरो, और दोनों को ऐड करेंगे तो चार्ज कैसा है, बिल्कुल जीरो, मतलब न्यूट्रल चार्ज. वी हैव
discussed in earlier classes, a glass rod have positive charge like plus q, and a plastic rod have minus q charge. Okay, if we will add plus q and minus q, so they cancel each other because the amount of the positive charge equal to amount of negative charge, so they cancel each other because it is a tendency of electric charge. So we will find the neutral charge here. Yes or not? Therefore, एक note है, therefore the total charge also remains zero in this position. This process is called the pair analysis है. यानी पेयर एनालिसिस एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर टोटल चार्ज है वो रिमेन हो क्या रहेगा, जीरो, मतलब जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, और ओवरऑल जो चार्ज रहेगा बिल्कुल क्या रहता है, न्यूट्रल रहेगा. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज of the charge, third property, quantization of the electric charge. According to the principle of the quantization of charge, the quantity of charge on an object is the integral multiple of the charge on an electron. मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है नेगेटिव में होता है वैसे -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, मतलब इतना चार्ज होता है ये 1.6 10 power 19. The quantity of charge on an electron is 1.6 into 10 power minus का 19 coulomb. That maximum definite the charge is called the quanta of the charge. मतलब जो maximum जो definite जो charge होता है उसको अपन quanta कहते हैं. क्वांटा ऑफ चार्ज बराबर होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके इक्वल होता है. एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कुलाम. इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पर माइनस लग जाता है और प्रोटॉन पर यहाँ पर प्लस लग जाता है, वही 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम. ये ध्यान आपको देना. अंडरस्टैंड. सो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट वो इस फॉर्मूला के द्वारा अपन निकाल सकते हैं कि Q इक्वल टू, ऐसे Q इक्वल टू क्या होता है, Ne. Q इक्वल टू Ne और प्लस माइनस Ne, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर तो चार्ज रहेगा ही, आपको कितना 1.6 10 पावर माइनस का 19 कुलाम. सो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 अपन इसको ले सकते हैं. तो 1 लेंगे या 0 लेंगे उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है. तो इसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको अपन किसके द्वारा निकालते हैं, Q इक्वल टू Ne. इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला and some numerical will come based on the Q equal to Ne. Okay, so you can write in your copy, you can make your notes in detail form. The discovery of quantization of charge was done by the Robert A. Millikan. Robert A. Millikan ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, या उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कवरी की थी बाय हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. यस और नॉट. व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, रॉबर्ट ए मिलिकन, जिसने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्या किया था, सबसे पहले डिस्कवरी की थी. Number 4 property, invariance of the electric charge. Invariance of electric charge means that the charge present on an particle does not depend on its velocity or speed. So we can say that Q dynamic state and Q rest, मतलब दोनों में इक्वल चार्ज रहेगा. जैसे यहाँ पर अगर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कुलाम है डायनेमिक स्टेट में, तो एट रेस्ट के ऊपर भी Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कुलाम ही रहने वाला है. ऐसा नहीं है कि रेस्ट में चार्ज अलग दर्शाएगा, अलग क्वांटिटी होगी, और मोशन के अंदर या मूविंग चार्ज है उसके ऊपर अलग वो रहेगा, इसका पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो प्रेजेंट रहेगा. ऐसा नहीं है, जितना रेस्ट पे है उतना ही मोशन पे रहेगा. अंडरस्टैंड. सो इट इज कॉल्ड द इनवेरियंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. Mainly 3 type of particle we have read. First proton, second electron and third neutron. Yes or not? What is the mass of proton? एक प्रोटॉन पर जो मास होता है वो इतना होता है 1.672 into 10 power minus 27 kg. Yes or not? What is the charge of proton? Plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. ओके, यहाँ पर साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, बिकॉज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में. सो प्रोटॉन हैव चार्ज प्लस 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम. ओके, एंड सेम इलेक्ट्रॉन
What is the mass of electron? 9.10 into 10 की power minus 31 kg. And the charge of the one electron minus 1.6 into 10 power 19 coulomb. Understand? And neutron have mass 1.674 into 10 power minus 27 kg, but neutron does not have any type of charge. It is neutral. So we can say the charge of the neutron will be 0. Understand? So very important things you can write in your copy, because in any type of numericals we will write the mass of proton, electron, and what is the charge. So that time we will use that type of values. Understand? So you can write in your copy. Next, neutron does not have any type of charge. यानी we have discussed neutron does not have any type of charge. बिल्कुल neutral होता है, न positive न ही negative. Some new topics, method of charges. If we want to charge any object, so we can take almost three type of method. First, charge by friction. Number second, charging by conduction. Number third, charging by induction. Yes or not? So what is means of charge by friction, charging by conduction, and charging by induction? Yes or not? फ्रिक्शन मीन्स किसी भी दो चीज को आपस में रगड़ेंगे तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर एक चार्ज क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है. वी हैव डिस्कस यस्टरडे क्लासेस बेंजामिन फ्रैंकलिन टेल्स अबाउट द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. यस और नोट? जैसे अपने ग्लास रोड लिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे अपन प्लास्टिक रोड लेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में अगर अपन रगड़ते हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज. So this type of method is called charging by friction. मतलब रगड़ना दो ऑब्जेक्ट को. Charging by conduction क्या है? We will take an example. It is a pencil, it is a pen. Okay, one pen. अगर ये ऑब्जेक्ट चार्जिंग है और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल न्यूट्रल है, तो ये कंडक्टर है और ये क्या है, मतलब विदाउट कंडक्टर, मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है और इसके ऊपर चार्ज है. अब इसके पास में इसको लेके आऊंगा तो इससे कुछ चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे. मतलब चार्ज पार्टिकल के पास में अगर अनचार्ज पार्टिकल अपन लेके जा रहे हैं, अनचार्ज सब्सटेंस लेके जाएंगे, तो इसकी वजह से इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, चार्जिंग आ जाएगी. यस और नोट? जैसे कोई एग्जांपल अगर अपन ले लें कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है या चार्जिंग है, और यहाँ पर एक अदर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये इसके पास में लेके आएंगे तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगी इसकी मतलब चार्जिंग है. तो ये जो है इसको अपन बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन. यस और नोट? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्जिंग बाई इंडक्शन. इंडक्शन के द्वारा क्या होता है, इंडक्शन के द्वारा आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, जिसके द्वारा चार्जिंग है. जैसे यहाँ पर कोई रोड ले लिया मैंने, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव रोड है और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है और इनसे अपने को अलग अलग क्या करना है, चार्जेस को सेपरेट करना है. पॉजिटिव है तो इसके पास में कौन सा चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव. इससे दूर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. यस और नोट? सेम. तो इसके पास में जो अदर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे न्यूट्रल, तो इसके ऊपर एक पर पॉजिटिव हो जाएगा, इसके ऊपर सभी पे नेगेटिव, और इसके ऊपर पूरी पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. यस और नोट? मतलब अलग अलग हो गया. तो इसके द्वारा जो हमारे पास में न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था जो विदाउट चार्ज था, उसके द्वारा हम किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. तो ये प्रोसेस है मेथड ऑफ चार्जिंग के. तो वी हैव डिस्कस हियर मेनली थ्री टाइप ऑफ मेथड. फर्स्ट, चार्ज बाई फ्रिक्शन, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ने पर. चार्जिंग बाई कंडक्शन, एक चार्जिंग पार्टिकल पास में अदर जो अनचार्ज पार्टिकल लेके जाएंगे तो उसके द्वारा उसमें कुछ चार्ज क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा. नंबर थर्ड है चार्जिंग बाई इंडक्शन, यानी एक चीज के संपर्क में किसी दूसरी चीज को लेके आएंगे तो इसकी वजह से इसमें कुछ चीजें क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है. यस और नोट? इंडक्शन हो जाता है. इसको अपन बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन. और इसके द्वारा आप किसी भी दो पार्टिकल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं बाई इंडक्शन मेथड. यस और नोट? सो दैट इज द mainly three method of the charge. So next topic, Coulomb's law. It is the very important topics, and
in board exam they will play a very important role, okay, in these chapters, electric charge and field. So what is means of Coulomb law? The force of attraction or repulsion acting between the two stationary point charges is proportional to the product of magnitude of the two charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. What is means of the definition? We will discuss ahead. This force act along the line joining the two charges, यानी हमारे पास में अगर दो सेम चार्जेज हैं, जैसे Q और Q, ये एक लाइन है और ये बीच में क्या है, यहाँ पर R है, तो जो इस पार्टिकल के बीच में जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, जो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, समान है, तो इनके बीच में जो फोर्स जनरेट होगा वो फोर्स है वो एफ प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के, Q1 और Q2 के। पहला बात ये कह रहा है। नंबर सेकंड ये कह रहा है कि जो बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आर है, उसमें ये जो ये फोर्स लग रहा है वो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहली लाइन तो ये कह रहा है कि दोनों फोर्स के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरी बात कह रहा है ये कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के, यानी जो फोर्स इनके बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या फिर क्या होगा, रिपल्सन। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, और अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो दोनों बीच में क्या होगा, फिर रिपल्सन। यस और नॉट? सो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। उसके बाद में कुलाम्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज द कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि ये जो आर है वो इस एप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वो भी स्क्वायर, आर का क्या है यहाँ पर, स्क्वायर। सो कुलाम्स लॉ ये अपने डिस्कस कर लिया है। इफ द टू पॉइंट चार्ज, एक Q1 और एक Q2, आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ईच अदर, देन बाय कुलाम्स लॉ, अगर हमने दो चार्ज यहाँ पर लेट कर लिया है, ये मान लिया है Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और वो दोनों आपस में एक दूसरे से r डिस्टेंस पर क्या है, रखे हुए हैं, तो फिर आगे कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर कि एफ प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2। देखो ये आपका Q1 और ये Q2, Q1 चार्ज हो गया और ये क्या है, Q2 चार्ज, और बीच में डिस्टेंस कितनी है, r। इसके अकॉर्डिंग अपन कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 और Q2 के। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अपन क्या कह सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 और r का स्क्वायर, ये दोनों अपन इससे कह सकते हैं। अब एफ बराबर, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फिजिक्स में क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट, तो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, हेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ k इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, यानी एयर भी नहीं है, कोई भी पार्टिकल वहां पर सिचुएटेड नहीं है, देयर इज नो मीडियम। k इक्वल टू, k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। अगर इस पूरी वैल्यू को अगर अपन कैलकुलेट करें और अपन कहें कि भाई इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो इसको कैलकुलेट करने पर आया 9 × 10⁹। यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। कैसे आए, यहां से मेरे को क्या निकालना है, k निकालना है, तो k के जो डिवाइड में था वो कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, यानी f इंटू आर स्क्वायर, पहली बात हो गई। और जो k के मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आएगा, इसके डिवाइड में, यानी Q1 और Q2। अब f है क्या है, फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है हमें पता है, न्यूटन। यस और नोट? r क्या है, जो बीच में क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर मेजर करेंगे, कैसा यूनिट क्या है, मीटर। और Q1 Q2 क्या है, कुलाम। Q क्या है, चार्ज, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कुलाम। तो नीचे दो कुलाम आ रहे हैं तो इसका मतलब कुलाम का स्क्वायर। सो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम इस पर क्या होगी, इसकी यूनिट होगी किसकी, k की। यस और नोट? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब जब अपन ने ये पढ़ा था k की वैल्यू, तो यहाँ पर एक ये साइन आया था, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। ये देखो हेयर, ये रहा हेयर, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नोट भी कह सकते हैं। इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी इन वैक्यूम।
या तो फ्री स्पेस में कहो या वैक्यूम में कहो। इसकी भी वैल्यू होती है द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नोट, यस और नोट, क्या 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट क्या है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलाम स्क्वायर तो ऐसे कैसे, न्यूटन अगर ऊपर जाएगा तो एन का इनवर्स, और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में, यस और नोट। भाई अपन अगर इसकी बात करें कि यहाँ से अगर मेरे को क्या चाहिए, एप्सिलॉन नोट चाहिए, तो एप्सिलॉन नोट यहाँ पे आएगा तो के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो जो के की आपकी यूनिट थी उसका अपोजिट किसकी यूनिट हो जाएगी, 1/एप्सिलॉन नोट की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कूलाम ऊपर चला जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे। ओके, ये रहा। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नोट। सो द डायमेंशन ऑफ 1/4πf q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और आर स्क्वायर। अपने को तो भाई एप्सिलॉन नोट की बात कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नोट अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ क्या आ जाएगा, नीचे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एप्सिलॉन नोट को मैं ये कह सकता हूँ 1/4 पाई एफ, और ऊपर क्या है Q1 Q2 और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर। ये बात है। देखो ये फॉर्मूला हमने लिख रखा है 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि Q इक्वल टू आई टी, यस और नॉट, एंड डायमेंशन ऑफ M1 L1 T-2, both type of dimension we can write here. So I की क्या होती है, मतलब एम्पियर A1, टाइम का क्या होता है T1, इसका स्क्वायर है, बिकॉज यहाँ पर Q1 और Q2 टू टाइम्स गुलाम आ रहा है तो इसका स्क्वायर हो गया। नीचे ये F है, ये 1/4 पाई, तो क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा यहाँ पर। F की क्या होती है, वी हैव रिटन M1 L1 T-2 एंड आर स्क्वायर वी हैव रिटन एल स्क्वायर। तो ऊपर तो क्या हो गया ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर है, और नीचे M1 L2 ये रहा और L1 ये रहा, तो क्या हो गया L क्यूब और टी की पावर -2। अंडरस्टैंड, अगर इन सबको अगर अपन कैलकुलेट कर ले तो डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नोट इक्वल टू m का आ गया ऊपर, तो m की पावर क्या हो गई -1, l ऊपर गया, l की पावर कितनी है 3, तो l की पावर -3, t की पावर -2 ये है, और अगर ये ऊपर जाएगी तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, सो टी की पावर टी की पावर 4, और a की पावर 2 ऊपर है तो a की पावर 2। सो वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नोट m पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2, वी कैन से। Okay, because the type of question we will face in your exam, they can ask what is the dimension of the epsilon node, so you can write m-1, l-3, t की power 4 and a 2। Understand? I hope you have understand. Next, a point, electrical force between the 2 point charge in vacuum। अगर कोई भी दो चार्जेज हैं और उनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है यानी वैक्यूम में है, तो फिर फोर्स क्या लगेगा, एफ वैक्यूम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड, इफ व्हेन बोथ चार्जेज आर प्लेस्ड इन मीडियम, अगर इनके बीच में कोई मीडियम के बीच में रखे हुए हैं ये, तो फिर फोर्स क्या लगेगा, एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई, इसमें क्या था एप्सिलॉन नोट, इसमें क्या है सिर्फ एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। Q1 Q2 ऐसे कैसे आर स्क्वायर, हेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अंडरस्टैंड, इट्स वैल्यू इज, अगर अपन यहाँ पर एप्सिलॉन की बात करें तो इसको अपन एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर बोलेंगे। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, यस और नोट। आगे अपन पढ़ेंगे कि इसका पूरा मतलब क्या है, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये जो एप्सिलॉन आर है, आर मतलब रिलेटिविटी, तो इसको अपन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर के एक नया नाम आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसा नाम आएगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अहेड एंड नेक्स्ट क्लास एप्सिलॉन नोट व्हाट इज एप्सिलॉन आर व्हाट इज मीन्स ऑफ, ठीक है। Therefore, the electric force between the two charges in medium, so Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर, ओके, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
तो एफ एम बराबर ये जो पूरी वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 R², ये वाला, ये और ये किसकी वैल्यू है? एफ नोट, यानी फोर्स इन वैक्यूम, और वन अप ये हो गया एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन आर अगर यहाँ पर आएगा तो एफ एम क्या आ जाएगा इसके नीचे। सो मतलब ये जो एप्सिलॉन आर आया है वो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, इन दोनों का क्या आता है? रेशियो आता है। कटने वाली चीजें क्या हो जाएगी? यहाँ पर कट जाएगी, और यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो आएगा आपका वो आ जाएगा एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पर अपन इसको, वैसे तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करने वाले हैं। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R² एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो किस में हो गया? ये जो एप्सिलॉन आर आ रहा है ये फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम। अब आप देख रहे हो इसके अंदर सब चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी? कट जाएगी। सो यहाँ पर Q1 Q2 R² से Q1 Q2 R² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया 1/R बराबर 1/एप्सिलॉन नोट और 1/एप्सिलॉन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर के जो मान आएगा तो वहां पर एप्सिलॉन तो चला जाएगा ऊपर और ये एप्सिलॉन नोट आ जाएगा नीचे। ये है इसका अल्टीमेट फॉर्मूला। अंडरस्टैंड? इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन आर की नोट की बात करूँ तो एप्सिलॉन आर कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे। ओके, सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस इन आवर earlier topics. Now we can say that okay, this type of things here, and we will detail form we will discuss in 8th class. And what is means of here? Point charge. If the dimensions of two charges bodies are negligible in comparison to the distance between them, then those charges are called point charges. What means point charge? देखो, ये Q कोई चार्ज है और यहाँ पर Q कोई चार्ज है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर कोई Q चार्ज है, ये कोई Q चार्ज है। अब इसकी कोई ना कोई क्या होगी? शेप होगी, इसकी भी कोई ना कोई साइज होगी, और ये बीच में क्या है? इसकी डिस्टेंस है। बट ये जो दोनों चार्जेज हैं वो इस डिस्टेंस की कंपैरिजन में बहुत ही छोटे हैं, मतलब नेग्लिजिबल, न के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये पॉइंट बहुत क्या है? छोटे हैं, मतलब चार्ज बहुत छोटे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अपन पॉइंट चार्ज। इसने ये कहा है कि जो डायमेंशन ऑफ ये डायमेंशन ऑफ द टू चार्जेस, डायमेंशन ऑफ टू चार्जेस, डायमेंशन मतलब होता है इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह जो भी इसकी साइज है। तो यहाँ पर वो इस बीच की साइज के कंपैरिजन में बहुत ही क्या है? छोटा है, इसलिए उसको अपन बोलेंगे पॉइंट चार्ज। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द 1 कूलम। इफ Q1 और Q2 इन दोनों की वैल्यू क्या मान ली अपन ने? 1 कूलम मान ली, एंड डिस्टेंस भी दोनों चार्ज के बीच में कितनी है? R, की Q1 और Q2 इन दो, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 1 कूलम, इसके ऊपर चार्ज भी कितना है? 1 कूलम, और बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? 1, R बराबर 1 मीटर। देन F मतलब फोर्स कितना होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला है। अब इसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ऐसे कैसे? Q1 Q2, we will put the value of Q1 Q2 here, so 1 into 1 upon में R² यानी 1 का स्क्वायर। So we will find here almost 1/4 pi epsilon naught, and we also know what is the value of 1/4 pi epsilon naught, 9 into 10 to the power 9, and unit of force Newton. Understand? So that is the electrical force of 9 into 10 to the power 9 Newton is experienced between two charges of the same magnitude
situated mutually at a distance of 1 meter in vacuum or air, या तो वैक्यूम में रखा हुआ हो या फिर एयर में रखा हुआ, then magnitude of each charge is equal to 1 कूलाम। तो उस समय अपन 1 कूलाम चार्ज को क्या करते हैं, यहाँ पर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा, 1 चार्ज रहेगा। तो उस समय जो चार्ज है वो 1 कूलाम और बीच में जो फोर्स है वो कितना रहेगा, 1 न्यूटन का रहेगा। अगर Q1 Q2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है, और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कितना ही हो, 1 हो, तो फिर चार्ज कितना आएगा, 1 कूलाम। अंडरस्टैंड? सो today we have discussed many type of topics. We can summarize in almost 5 minutes. First of all, our topic fundamental property of electric charges. We have discussed what is the main properties of electric charge, additivity of the electric charge। इसको अपन मतलब किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अपन ऐसे ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वो चार्ज हो क्या है, बिल्कुल स्केलर है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज न तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज वो एक सब्सटेंस से अदर सब्सटेंस में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज है, कोई भी चार्ज है वो एक मल्टीपल क्या होता है, ये सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹, यानी एक गुलाम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका वो क्या होता है, मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। वी हैव डिस्कस इनवर्स इनवेरिएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जितना रेस्ट के ऊपर चार्ज रहेगा उतना ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके मोशन में रहेगा। ओके, and proton, electron, neutron particles, we have discussed what is the mass of proton, electron and neutron and what is charge. Okay, and neutron does not have any type of charge. Next point, method of the charge. So charge by the friction, charge by the conduction, charge by induction, तीनों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। कुलाम्स लॉ, ये कुलाम्स लॉ दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में काम करता है और इसे कुलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला अपने जनरेट कर चुके हैं। वी एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पर के कांस्टेंट आएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 1/4πε0, और इसका मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, समराइज कर सकते हैं अगर। उसके बाद में जो ε0 उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, जो के की जो यूनिट थी उसका जस्ट अपोजिट इसकी यूनिट होती है। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ε0, n-1 l-3 t⁴ a⁴2, यस और नोट। एंड डायमेंशन जो है वो 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर अपन निकालना सीखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, yes or not, because every physical quantity have dimension and units, some expansion are given in here। एंड इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है वो वैक्यूम में कितना है, मीडियम में कितना है, दोनों का रेशियो जो आएगा उसे हम εr कहते हैं। ओके, कैसे आया वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट चार्ज क्या है, जिसकी डायमेंशन उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसकी कंपेरिजन बहुत ही क्या हो, छोटी यानी कि नेग्लिजिबल है, तो वो दोनों क्या होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम, यानी Q1 Q2 अगर 1 है, डिस्टेंस बीच में 1 है, r बराबर 1 है, तो फोर्स यहाँ पर 1 न्यूटन जनरेट होगा, यानी 9 × 10⁹ अगर फोर्स जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब Q1 Q2 के ऊपर कितना चार्ज है, 1 कूलाम। तो यहाँ से अपन चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड मेनी टाइप ऑफ टॉपिक, सो यू कैन राइट इन योर कॉपी एंड यू कैन मेक योर प्रॉपर नोट्स, यस और नोट। एंड part 3 we will in part 3 we will discuss on tomorrow, and we will take some important topics. Okay, so here we will discuss all types of topics discussed in detailed form, and we will complete here physics of 12th class in simple way, and it is very useful for RBSE board and CBSE board. Okay, thank you, nice to talk with you, best of luck.